दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रिया बहू, तुझे तो खाना बनाना आता है, फिर भी तू तो बंगालन खाना बनाती होगी। पता नहीं मेरे बेटे को तुझ में क्या दिख गया है कि वो तेरे से डायरेक्ट शादी कर लिया है ना। माँ से पूछा एक बार, डायरेक्ट बंगालन से शादी कर लिया है। देखो जरा हमारे रीति रिवाज तौर तरीके सब अलग है और तुम बंगालन लोग का भी अलग है। कैसे क्या होगा बहू, बताओ तुम ही। मेरे बेटे की दिमाग नहीं थी पर तेरे तो थे ना। तू तो बोलती मेरे बेटे को कि एक बार मम्मी से बात कर लीजिए। पता नहीं तुम्हें मेरी बात सुनाई भी दे रही है या समझ में भी आ रहा। मुझे तो बंगला बोलना भी नहीं आता है। मेरा तो एक ही बेटा था, मैं कितना शौक और अरमान लेकर उसे बड़ा की थी, कितना कुछ करती मैं उसके शादी पर। तब मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे ऐसा कर लेगा। अब जो हो गया वो तो हो गया, अब जो होना है उसे देखना पड़ेगा। तू तो कुछ बोल ही नहीं रही है और मुझे तेरी ये बंगालन वाली भाषा समझ में नहीं आती है। तू हिंदी सीख ले बहू। तुझे एक बात बताना भूल ही गई, उस टाइम कॉल आया था, देख फिर से आ रही होगी तेरी माँ। जा उठाकर बात कर ले। হ্যালো প্রিয়া, ফোন টোন করিস না কেন? হ্যাঁ মা বলো। ফোন করার সময় পাই না, সেই জন্য আমাকে এইখানে इंग्लिश भी सीखना होता है और हिंदी भी सीखना होता है और আমাকে সব কিছু শিখতে হয় গো মা। আর যে শাশুড়ি আছে ना, ওনাকে আমি যেন हिंदी बोली, वो वैसा ढूंढती है कि मैं हिंदी बोलूँ माँ। वैसे आप क्या कर रही हैं? আর আমি না হিন্দি শিখতে চাই গো মা, সেই জন্য আমি সময় পাই না। ফোনে ইন্টারনেটে হিন্দি কেমন বলতে হয় আমি সেইটা দেখি গো মা। তুমি কেমন আছো? আসো বাড়িতে ঘোরার জন্য আসো। ও সোনা, আসবো গো, তোমার বাবাকে নিয়ে আসবো। দেখো না এইদিকে তোমার বাবার শরীর খারাপ হয়ে গেছে, তো ডক্টরের কাছে নিয়ে গেছিলাম। এখন আসলাম, এখন খাওয়া দাওয়া করে এখন আরাম করলাম, তো বললাম যে তোকে ফোনটা লাগাই। মেয়েটা ফোনও করে না যে। তো আমি রান্না করেছি, মিষ্টি আছে, লেবু ছিল, আর হচ্ছে মাছের ঘন্ট বানিয়েছি, কলার পাতার কুচি বানাইছি, কলার মুচি বানাইছি গো, এগুলোই বানাইছি। মা তুমি কি করছো গো? এখন তোমার বাবা বিশ্রাম করছে, একটু পরে দিব। এখনই তো কেবল ভাত খেয়েছে, একটু পরে আমি ওনারে ওষুধ দিব, ওষুধটা খেয়ে ফেলবেন, তারপরে একটু সুস্থ হয়ে যাবেন। তারপরে আমি তোর বাবা একসঙ্গে তোর বাড়ি আসবো। তুই চিন্তা ভাবনা করিস না, ভালো করে থাক, নিজের শাশুড়ির খেয়াল রাখবি। আমি ফোনটা রাখছি, পরে আবার ফোন করব। হ্যাঁ ঠিক আছে। আর জামাই বাবু কোথায়? আচ্ছা শোন না, তুই সন্ধ্যাবেলা ভালোভাবে রান্না টান্না করে সবার খেয়াল রাখবি, যেন কাউকে কিছু না বলে, কোনো ব্যাপারে কোনো কথা না হয়। যেগুলো খুব কথার খেয়াল যেন রাখবি তুই, ঠিক আছে মা? আমি এখন ফোন রাখছি, তোর বাবা ডাক দিচ্ছে আমাকে, তুই যা। হ্যাঁ এখন কি করবি তুই কর, ভালো করে থাকিস, আমি আবার তোকে ফোন করব, ঠিক আছে মা? আর হ্যাঁ বলছি কি, ওইটা আমাদের এখানে পাশে যেটা বাড়ি ছিল না, সেইখানকার ওর ঠাম্মাটা মারা গিয়েছে, তো তাই জন্য ওর বাড়িতে অনেক চিল্লাচিল্লি হচ্ছে। আর হচ্ছে কি যেন হয়ে গেছিল,
ঠিক আছে, তুমি বাবার খেয়াল রাখবা, হ্যাঁ। আর তুমি যদি রান্না না করতে পারো তাহলে পাশের মেয়েকে ডাইকে নিবা, ও রান্না করে দিবে, ওকে কিছু টাকা দিয়ে দিবা, ও চলে যাবে, তোমার রান্নাও হয়ে যাবে, তোমাকে এত কষ্টও করতে হবে না। বাবার যেন খেয়াল রাখবা, টাইম পে ওষুধ দিতে থাকবা, আর হচ্ছে তুমি বাবাকে ডক্টরের কাছে নিয়ে যাবা, ঠিক আছে টাইমে। আর খেয়াল রাখবা বাবা যে বলছে না খেতে, যেগুলো ডাক্তার হাসপাতালে যেগুলো মানা করেছে সেগুলো একটু বারণ দিতে বলবা। আর কি, বাবার খেয়াল রাখবা। আমি তোমায় ফ্রি হয়ে ফোনটা করবো, হ্যাঁ মা, তুমি ফোনটা নিজের কাছে যেন রাখো, আমি ফোন করলে তুমি তুলে নিবা, ঠিক আছে। আমার শাশুড়ি এখন ডাক দিচ্ছে, আমি राखी, ठीक है माँ, ख्याल रखबा, बाय। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। या बहू, ओ बंगालन, कब से तू अपनी माँ से बात करी, फ़ोन पे चिपकी हुई है। ओ शाশুড়ি माँ, चल जल्दी से खाना उना बना, और मेहमान आ रहे हैं। और हाँ, खाना बहुत बढ़िया होनी चाहिए, अगर शिकायत आई ना तो तुम्हारी खैर नहीं। भले बहुत अच्छे से खाने में तड़का लगाना, बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं और मेरा नाम ख़राब नहीं होना चाहिए। पहली बार तुझे देखेंगे, बढ़िया से तैयार हो जा, पहले खाना बना ले फिर रेडी हो जाना। और हाँ, उनके सामने ज़्यादा बंगाली बातें नहीं करना, तुम समझी, थोड़ा हिंदी में ही बात कर लेना, थोड़ा ही बात कर लेना, ठीक है। मान के आने का टाइम हो जाता है। शारदी, प्रिया और बिमला जो उसके पड़ोसन थी सब एक साथ थे, फिर सबको इंतजार कर रहे थे। आइए बैठिए, लोग अच्छे से तो आ गए, आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आने में। बैठिए और खाना दे रहे हैं, आप लोग खाना खा लीजिए थोड़ा, उसके बाद बात करेंगे। इतना लंबा सफ़र था ना, इसलिए बहू खाना निकालो जल्दी। प्रिया ने अपने हाथों से बनाया आप लोगों के लिए खाना, बहू निकालो, परोसो दो जरा। प्रिया के माँ, पिताजी और उसका भाई आया था, जो कि गोपाल, संजीत और अरुणा, उन लोगों की बहुत अच्छी स्वागत हुई। गालन खाना देखकर वो लोग वाह कर रहे हैं, खाना बहुत अच्छा हुआ। फिर मेहमान वहाँ से चले जाते हैं तो शारदी की दोस्त बिमला कहने लगती है, आरती, मैं तुम्हें एक बात बोलूं, बहू बंगालन है तो क्या हुआ, कितना अच्छा खाना बनाइए, देखना वो लोग तो तारीफ करते ही नहीं थक रहे थे। और एक मेरी बेटी का रिश्ता आता है तो बंगालन फैमिली से ही आता है, अब उसे भी मेरी बहू के जैसे ही सिखाना पड़ेगा, है ना बहू, तुम सिखा देना मेरी बेटी को। है आंटी जी, क्यों नहीं, मैं सिखा दूंगी। बहू देखना, एक परेशानी मेरी दूर हो गई, आज तुम्हारी खाना की तारीफ सुनकर। मेरी बेटी के कल रिश्तेदार वाले आ रहे और उन्हें खिचड़ी चाहिए, बंगालन जैसे बंगाली लोग बनाते हैं, तो तुझे तो आता ही होगा ना, तू जरा हमारे घर आकर अपनी हाथों से टेस्टी वाली खिचड़ी बना देना, तो मेरी बेटी को भी सिखा देना, साथ में खिचड़ी भी बन जाएंगे। आरती जरा बोल देना अपनी बहू को कि हाँ बिमला, क्यों नहीं, मेरी बहू बना देगी, मेरी बहू बंगालन है तो क्या हुआ, आज मेरा कितना नाम रोशन करती। बहू मुझे माफ़ कर दे, मेरी प्रिया बहू मुझे माफ़ कर दे, आज तक मैं तेरे साथ कैसे कैसे बर्ताव करती आई हूँ और तुझसे हमेशा चिढ़कर बात करती हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे मेरी बहू, तू मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है बेटी।
तू बिमला के घर जाकर खिचड़ी बना देना बहू, वो बहुत ये से बोली, उसकी बेटी के रिश्तेदार वाले आने वाले, बहू बना देना, मुझे माफ। आजा मेरी बहू आजा, मैं तुझे अपने गले से लगाना चाहती हूँ मेरी प्रिया बहू, आजा मेरी बेटी आजा आजा। फिर शारदा और बिमला एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और उन दोनों की नफरत ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। उधर कौसरी तैयार रहती है और वो मेहमान आ जाते हैं। खिचड़ी तो बहुत टेस्टी हुई है, वाह मज़ा ही आ गया। बहुत टेस्टी हुई है। वाह, तो हम दोनों रिश्ता समझो पक्का समझे। बहू के हाथ की तो खिचड़ी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है और जो नहीं आता है वो हम लोग बनाना सिखा देंगे। क्या कौसरी सही कह रही हूँ ना? तो ठीक है, अगले सोमवार हम आते हैं तो फिर सारी तैयारी की बातें करेंगे और डेट फाइनल कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं। ठीक है कौसरी, अपना ख्याल रखना बेटी, ठीक है? अच्छा। बिमला कह रही थी कि खिचड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, ऐसे ही अपने नाम रोशन करती रहे बहू और खुश रहो।